friends, welcome to Toppers class. Today we are going to analyze the poem Mercy written by an eminent English poet William Shakespeare. Basically it is an extract from his famous play The Merchant of Venice. So without wasting any time, let us start. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest it becomes, the throned monarch better than his crown. His sceptre shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. An earthly power doth then show like gods when mercy seasons justice. Here are some difficult words. Strained means forced, droppeth means drops, blesseth, blessed. Tis is the short form of it is. Crown here denotes the supreme power of the king. Scepter means royal wand and it is the symbol of authority. This is the royal wand. यहाँ पे आगे है राजा, इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है ये जो है ये है scepter. It is the symbol of authority, symbol of power. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे जब हम explanation करेंगे. It is very important. Enthroned means seated. Attribute means quality. सबसे पहले हम जान लेते हैं about the author William Shakespeare, his life, his works. He was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in UK. He was an English poet, English author. He died in 1616 AD. His famous works include Julius Caesar, Romeo and Juliet, Hamlet and Othello. He was basically a playwright and has written many famous plays. चलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The quality of mercy is not strained. Strained means forced. It droppeth as gentle rain from heaven. Droppeth means drops. The poet says that mercy cannot be forced out of someone. कवि कहते हैं कि दया और करुणा की जो भावना है वह जबरदस्ती किसी में नहीं लाई जा सकती, बल्कि पहले से ही एक उदार और एक दयावान व्यक्ति में होती है. ये जबरदस्ती किसी में लाई नहीं जा सकती, ये बिल्कुल प्राकृतिक भाव होता है. It comes naturally, just like the raindrop that God himself sends to earth. दया की भावना एकदम कुदरती होती है. One does not show mercy just because one has to. It naturally comes out from a heart filled with love and falls freely like the rain. Okay, I hope it's clear. आगे चलते हैं. Upon the place beneath, it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is very important. Shakespeare कहते हैं कि mercy is full of blessings. ठीक है. It is a twice blessing. It proves beneficial for both the giver and the taker. कवि कहते हैं कि दया और करुणा का भाव दुगना वरदान देता है. अब कैसे दुगना, देखिए. जो दया की भावना दिखाता है, ठीक है, द गिवर ऑफ मर्सी, उसे भी आशीर्वाद देती है और जिस पर दिखाई जा रही है उसके लिए भी वरदान साबित होती है. दयावान इंसान ने जिस पर रहम खाकर उसकी कोई गलती माफ की या फिर उसकी कोई मदद की, उसको भी वरदान देती है. कैसे देखते हैं. कविता के संदर्भ में देखा जाए, अगर राजा दया भावना दिखाता है, अपनी प्रजा का भला करना चाहता है और उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देता है, उनको दंड देने के बजाय उन पर दया दिखाता है, उन्हें माफ कर देता है, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ती है. ठीक है. It provides fame to the giver, here the king, and help to the taker. आगे देखते हैं. 'Tis mightiest of the mightiest it becomes, the throned monarch better than his crown. According to the poet, mercy is the most powerful than the powerful monarchs. ठीक है. यहाँ पे कवि कहते हैं कि मर्सी सबसे शक्तिशाली राजाओं से भी ज्यादा ताकतवर है. दया की भावना इतनी ताकतवर है कि इससे एक आम मानव भगवान जैसी शक्तियां पा सकता है. ठीक है.
The quality of mercy is better than the crown of the king. The throned monarch better than his crown. ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग, क्योंकि जो क्राउन है वो सिर्फ टेम्पररी पावर को रिफ्लेक्ट करता है. Scepter shows temporal power, the attribute to awe and majesty. ठीक है, scepter आपको पता है, ठीक है, मैं हमने देखा था वर्ड मीनिंग में. The poet is of the opinion that the staff, scepter means staff, okay, of the king with which he walks represents temporary power. राजा जब चलता है उसके हाथ में एक राजदंड रहता है, ठीक है, छड़ी रहती है जो उसके प्रभुत्व का प्रतीक होती है, उसके राजगद्दी, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर का सिंबल होती है. कवि कहते हैं कि राजा की शाही छड़ी बस अस्थायी अधिकार को दर्शाती है, बस कुछ समय की शक्ति को सिंबलाइज करती है. टेम्पररी पावर, इट इज टेम्पररी. इट मेक्स द मासेस रिस्पेक्ट हिम एंड फियर फ्रॉम हिम. ठीक है, इट इज द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी. वो शाही छड़ी केवल राजा की महिमा का गुणगान करती है और लोगों के मन में डर पैदा करती है. ठीक है. Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptred sway. Though the might of the king fills fear in the hearts of people, yet the quality of mercy is more powerful than his. उस राजदंड से जो आम जनता है वो डरती है. ठीक है, उसकी वजह से आम जनता में राजा के प्रति डर पैदा होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि बट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज मोर पावरफुल देन हिज सप्टर. कैसे देखते हैं? इफ अ किंग इज काइंड एंड मर्सीफुल इट मेक्स हिम मोर पावरफुल. मोर ओवर दिस माइट इज परमानेंट. ठीक है, जो आप अपनी गद्दी या अपनी अथॉरिटी का राज दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं वो एक टेम्पररी पावर हुई. वो अगर आज आप राजा हैं, कल आप राजा नहीं, तो लोग आपसे डरना बंद हो जाएंगे. लेकिन अगर आप एक दयावान राजा हैं और आज आपसे राजगद्दी छूट भी जाती है, फिर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे, जनता आपको मानेगी, क्योंकि मर्सी इज परमानेंट पावर. ठीक है. इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स. इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं एज मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, इफ अ किंग पोसेसेस इट ही विल बी ट्रीटेड लाइक गॉड बाय हिज पीपल. कवि कहते हैं कि महान राजाओं के दिल में ये मर्सी की क्वालिटी पहले से ही विराजमान होती है. ये खुद ईश्वर का गुण है. मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ. भगवान ही सबसे ज़्यादा कृपालु, दयावान और रहमदिल होते हैं, ये हम सब जानते हैं. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ वाइज एंड जस्ट किंग्स हार्ट. पोएट बस यही कहना चाहते हैं, शेक्सपियर यही कहना चाहते हैं कि मर्सी की क्वालिटी गॉड लाइक क्वालिटी है, और अगर एक किंग के दिल में ये क्वालिटी है तो ही विल बी ट्रीटेड लाइक गॉड. And earthly power doth then show like gods when mercy seasons justice. ये हमारा लास्ट कपलेट है. यहाँ पे शेक्सपियर कहना चाहते हैं when a king gives his judgment while showing mercy, the earthly power of the king becomes god like. ठीक है, यहाँ पे एंड वाले जो 2 लाइन्स हैं इसमें कवि कहते हैं जब न्याय, दया और करुणा से तर हो तो संसारिक शक्ति, मतलब यहाँ पे किंग की जो अर्थली पावर है वो भी भगवान की अलौकिक शक्ति के समान प्रतीत होती है, गॉड लाइक पावर. कहने का मतलब ये है कि अगर एक राजा दया और करुणा की भावना दिखाता है तो उसकी प्रजा प्राकृतिक रूप से उसे मन से चाहेगी, उसका सम्मान करेगी और उसके प्रति वफादार होगी. मर्सी इज अ डिवाइन क्वालिटी दैट मेक्स हिज पोजेसर गॉड लाइक. इससे राजा को असली शक्ति मिलेगी और निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सबका भला होगा.